السلام علیکم، میرے چینل سچی کہانیاں میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور خوش ہوں گے۔ آج کی کہانی انتہائی خوفناک کہانی ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے تاکہ میں کہانی کا باقاعدہ آغاز کر سکوں۔ اور ہاں، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے اور یہ بھی بتایا کیجیے کہ آپ کس ملک یا شہر سے میری کہانی سن رہے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ قصہ کافی پرانا ہے۔ ایک مسجد کے مولوی صاحب تھے جو بہت ہی نیک انسان تھے، بہت ہی پرہیزگار۔ لوگ ان سے قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے تھے، بہت سے بچوں کو بھی بھجوایا کرتے تھے۔ وہ فی سبیل اللہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ لوگوں کا روحانی علاج بھی کرتے تھے۔ ان کی پڑھائی میں بہت تاثیر تھی۔ ان کے علاج سے لوگ فوراً سے ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں پر کافی سارے دوسرے قصبوں سے بھی لوگ ان کے پاس آتے تھے تاکہ وہ دم وغیرہ کر دیں، جس سے انہیں آفاقہ ہو جائے۔ ان کے پاس زیادہ تر مسلمانوں کا ہی آنا جانا تھا۔ ایک دن میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا کہ میرے ساتھ بہت سے اور لڑکے بھی بیٹھے تھے جو قرآن پاک پڑھنے میں محو تھے، لیکن ایک دم ہم سب چونک پڑے۔ ایک شخص مولوی صاحب کے پاس آیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر مولوی صاحب بولے، کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ وہ شخص ہندو تھا، ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی۔ اس نے کہا، مولوی صاحب، میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ مہربانی فرما کر اسے دیکھ لیں۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے کیا بیماری ہے۔ ٹھیک ہے موہن داس، اسے کل اسی وقت یہاں لے آنا، میں اسے دیکھ لوں گا کہ اسے کیا مسئلہ ہے۔ یہ سن کر موہن داس نے کہا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ باہر چلا گیا۔ اگلے دن ٹھیک اسی وقت پر موہن داس ایک 20 یا 22 سال کے لڑکے کو مدرسے میں لے کر داخل ہوا۔ مولوی صاحب پہلے سے ہی مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے اور موہن داس سے پہلے آئی ہوئی عورت کو دم کر رہے تھے۔ اس عورت پر کسی نے جادو ٹونا کیا ہوا تھا۔ موہن داس اور اس کا بیٹا مولوی صاحب کے پاس بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب نے موہن داس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو موہن داس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے یہ غلطی سے شکار کرنے وہاں چلا گیا جہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں جن، چڑیلیں، بھوت بلائیں اور پتہ نہیں کون کون سی غیر مرئی چیزیں رہتی ہیں، اور اس طرف کسی کا جانا نہیں ہوتا۔ تب سے اسے نہ جانے کیا ہو گیا ہے، عجیب عجیب سی حرکتیں کرتا ہے، نہ سوتا ہے نہ کھاتا ہے، اور جب کھاتا ہے تو 10-10 12-12 روٹیاں کھا جاتا ہے اور 8-8 10-10 پانی کے جگ پی جاتا ہے، سارا دودھ پی جاتا ہے اور گوشت تو کچا بھی کھا جاتا ہے۔ پھر عجیب عجیب سی خوفناک آوازیں نکالتا ہے، بھیانک قسم کے قہقہے لگاتا ہے، اور سب سے حیرانگی والی بات تو یہ کہ جب کبھی بولتا ہے تو اس کی اپنی آواز نہیں ہوتی، کسی بھیانک عورت کی آواز میں بولتا ہے۔ میں اسے کئی پنڈتوں کو دکھا چکا ہوں، لیکن اسے کہیں سے بھی آرام نہیں مل رہا۔ مولوی صاحب نے لڑکے سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام آشیش ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، آشیش بیٹا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہاں گئے تھے تم؟ تو آشیش نے کہا، جی 2 ہفتے پہلے گیا تھا، لوگوں کا وہم ہے کہ وہاں پر کچھ رہتا ہے، میں اسی لیے وہاں پر شکار کرنے چلا گیا کہ مجھے یقین نہیں تھا، ایسا بنا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مرئی چیزیں ایسی جگہوں پر رہتی ہوں، ہم انسانوں کا آنا جانا ہے وہاں، لیکن وہاں تو ایسا لگتا ہے کہ سچ میں بھوت یا چڑیلیں رہتی ہیں۔ وہاں جانا تو ایک طرف، اس جگہ کا نام سن کر بھی لوگ کانپ جاتے تھے اور ڈر کی وجہ سے وہاں نہیں جاتے تھے، لیکن میں اس کے باوجود بھی اس علاقے میں جاتا تھا۔ اگلے دن میں جب وہاں جانے کا ارادہ باندھ چکا تو مجھے پتا چلا کہ وہاں سے کسی کی لاش بھی ملی ہے۔ یہ بات سچ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں وہاں چلا گیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ میری غلطی ہے۔ مولوی صاحب اس کی شکل حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو کہ آج کل کے بچے یہ چیزیں نہیں مانتے کہ جن، بھوت یا چڑیلیں وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ماننے نہ ماننے سے کسی کا وجود ختم نہیں ہو جاتا۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ وہاں سے ہو کر تم آ گئے، زندہ کیسے بچ گئے؟ مولوی صاحب نے کہا، جی میں جب اس علاقے میں گیا
तो मैंने देखा कि यहाँ हर तरफ बहुत लंबी झाड़ियाँ और कांटेदार पौधे हैं और कहीं कहीं शबनम और पीपल के दरख्त थे। बहुत बड़े बड़े बरगद के दरख्त भी थे। वहां मुझे कोई भी इंसान नजर नहीं आया और ना ही वहां कोई परिंदा था। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन मुझे वहां कोई शिकार नहीं मिला। मैं पसीने से शराबोर था। फिर मैंने पीपल के एक दरख्त के नीचे बैठना मुनासिब समझा। अचानक मेरी नजर झाड़ियों से होती हुई एक महलनुमा इमारत पर पड़ी तो मैं चौंक गया, क्योंकि वहां से धुआं निकल रहा था और वो सीधा ऊपर को जा रहा था। मैं बहुत हैरान था कि ये धुआं कैसा है। अचानक मेरे निशाने के सामने एक परिंदा आ बैठा तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने भी उसका निशाना बांधा ही था कि वो परिंदा अचानक से गायब हो गया। मैं बड़ा हैरान हुआ। अचानक वो परिंदा फिर से जाहिर हुआ। मैंने फिर से निशाना बांधा और फिर से गायब हो गया। मैं बहुत डर सा गया था और खौफजदा होकर कांपने लगा था, क्योंकि मैं जिस पीपल के दरख्त के नीचे बैठा था, मुझे वहां से कोई नस्वानी आवाज खौफजदा कर रही थी। वो जोर जोर से कहकहे लगाने लगी। मैंने ऊपर देखा तो कुछ न था, लेकिन कहकहों की आवाजें मुसलसल आ रही थी। फिर मैंने खौफजदा होकर दौड़ लगा दी, मगर कुछ दूर भागने के बाद जैसे मेरे पांव जकड़े से गए और फिर मुझे कोई नादीदा भयानक नस्वानी आवाज आई। तुमने बड़ी गलती कर दी यहाँ आने की। यहाँ कोई भी नहीं आता, और अगर कोई यहाँ आ जाए तो वो जिंदा वापस नहीं जाता। लेकिन तुम्हें जिंदा छोड़ना हमारी मजबूरी है, लेकिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं फिर से खौफजदा होकर दौड़ने लगा। गिरता पड़ता घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो मेरा बहुत बुरा हाल था। फिर जब आधी रात को मैं सोया था तो मुझे किसी ने जगाया। जब मैं उठा तो मेरे सामने एक अजीब खौफनाक शक्ल सूरत वाली भूतनी खड़ी थी, जिसके बहुत लंबे दांत थे और बाल तो इतने लंबे थे कि उसके पांव से भी 2 गज दूर तक बिखरे हुए थे जमीन पर, और लंबी लंबी सी जबान थी जो वो बार बार अपने होठों पर फेर रही थी। उसकी आंखें इंतहाई भयानक थी। मैं उसे देखकर बहुत डर गया, चीखने लगा तो उसने मुझे मेरे बालों से पकड़ लिया और जमीन से कई फीट ऊपर उठा लिया। फिर मुझे जोर से जमीन पर पटका और एकदम गायब हो गई। उस रात से खास कर वो भूतनी रोज रात को मुझसे मिलने आती है और मुझे कोई न कोई तकलीफ जरूर देती है। ये बोलकर आशीष रोने लग गया। मौलवी साहब ने आशीष की सारी बात सुनकर उसे अपने पास बैठने का कहा। फिर मौलवी साहब आशीष का हाथ पकड़कर अपने हाथ में लेकर काफी देर मुंह में कुछ पढ़ते रहे। फिर अचानक से आशीष को झटका सा लगा और वो हिलने लगा। मौलवी साहब ने पूछा, क्या नाम है तेरा? मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी। शंकर के मुंह से नस्वानी आवाज निकली। तुम्हें अपना नाम बताना होगा। ये कहकर मौलवी साहब फिर से कुछ पढ़ने लगे। अचानक वो रोने लगी तो मौलवी साहब ने फिर से पूछा, हाँ अब बता, क्या नाम है तेरा? पहले ये सब पढ़ना बंद करो, फिर बताती हूँ। आशीष के मुंह से आवाज निकली। ये सुनकर मौलवी साहब ने पढ़ना बंद कर दिया तो वो बोले, मेरा नाम महरूबी है। मौलवी साहब ने कहा, तुम क्यों इसको तंग कर रही हो? आशीष ये हमारे इलाके में दाखिल हुआ था इसीलिए। लेकिन ये तो कोई जुर्म नहीं है, ये सब तो खुदा की जमीन है, और वैसे भी उसने तुम्हारे इलाके से कोई चीज चुराई तो नहीं, इसीलिए इसकी जान छोड़ दो। जो इसने किया उसकी तुम इसे काफी सजा दे चुकी हो। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। आशीष के मुंह से नस्वानी आवाज निकली। मौलवी साहब बोले, एक बात बताओ, जो भी तुम्हारे इलाके में जाता है तुम लोग उसे मारकर अपने इलाके से बाहर फेंक देते हो, तो इसको क्यों जाने दिया तुमने? बस तो चल रहा था कि इसे भी मार दूं, लेकिन एक मजबूरी की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकी। मौलवी साहब ने कहा, ऐसी क्या मजबूरी थी? क्योंकि भूतनी की बात सुनकर मौलवी साहब बहुत हैरान हुए, क्योंकि उसने कहा था कि हम अपने इलाके में सिर्फ मुसलमान लोगों का ही खून चूसकर उन्हें अपने इलाके से बाहर फेंक देते हैं, और ये आशीष हमारे ही मजहब हिंदू मजहब का था, इसीलिए हमें इसे छोड़ना पड़ा, वरना ये भी मरा हुआ होता। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मौलवी साहब गुस्से से बोले और फिर आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लग गए। जो जो मौलवी साहब कुरान पाक को पढ़ते रहे वैसे वैसे वो भूतनी गुस्से से बड़बड़ाने लगी। फिर जोर जोर से रोने लगी
پھر چیخنے لگی اور پھر اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو، آئندہ میں کسی بھی مسلم کو نہیں ماروں گی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مولوی صاحب نے اپنی آنکھیں کھول کر کہا اور پھر دوبارہ سے آنکھیں بند کر کے قرآن پاک پڑھنے لگ گئے کہ اچانک بھوتنی نے کہا، تم جو پڑھ رہے ہو تمہیں اس کا واسطہ، مجھے چھوڑ دو۔ یہ سنتے ہی مولوی صاحب نے پڑھنا بند کر دیا اور بولے، جس کا تم نے مجھے واسطہ دیا ہے اس کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، جا میں تجھے چھوڑتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ تو اب اس لڑکے کو مزید تنگ نہیں کرے گی اور چلی جائے گی، اور آج کے بعد تم کسی بھی مسلمان کو نہیں مارو گی۔ میرا وعدہ ہے کہ میں آئندہ کسی بھی مسلمان کو نہیں ماروں گی اور اس لڑکے کے پاس بھی کبھی نہیں آؤں گی۔ بھوتنی یہ بات سن کر مولوی صاحب نے آشیش کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ لڑکا بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنی ہی زبان میں بول رہا تھا۔ مولوی صاحب بولے، موہن داس اپنے بیٹے کو لے جاؤ، اب یہ بالکل ٹھیک ہے، آئندہ اسے کوئی بھی چڑیل یا بھوتنی تنگ نہیں کرے گی۔ موہن داس اپنے بیٹے کو لے کر چلا گیا اور مولوی صاحب کے کاندھے دبانے لگ گیا۔ میں مسلم فساد بڑھتے جا رہے تھے اور یہ خبریں آتی جا رہی تھی کہ اب مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہندوستان چھوڑ کر پاکستان چلے جائیں گے۔ میں گھر بیٹھا ہوا تھا اور تمام گھر والے مشورہ کر رہے تھے کہ سب لوگوں کو پاکستان جانا چاہیے کیونکہ تمام مسلمان ادھر کو کوچ کر رہے ہیں۔ میں اور میری بہنیں بہت خوش تھی کہ ہم اپنے ایک الگ آزاد ملک پاکستان میں جائیں گے۔ ابو نے محلے والوں سے بات کی تو طے پایا کہ پاکستان جانے کی تیاری آج ہی کر لی گئی ہے اور رات کو پاکستان کی طرف روانہ ہوا جائے گا۔ پاکستان کی سرحد ہمارے گاؤں سے تقریباً 200 کلومیٹر دور تھی اور ہمیں آج رات پورے محلے نے ہندوستان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا تھا اور نکلنا تھا پاکستان کے لیے۔ رات ہوئی تو تمام محلے والے ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور تمام عورتوں کو بھی اکٹھا کیا گیا اور رات کے تقریباً 11 بجے سب نئے وطن نکل پڑے، آدھے مرد آگے اور آدھے مرد پیچھے، جبکہ عورتیں درمیان میں تھیں۔ ہم مخصوص راستے پر چل پڑے جو پاکستان کو جاتا تھا۔ ہم آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے پاکستان کی طرف جا رہے تھے۔ چلتے ہوئے تقریباً 30-40 منٹ ہو گئے تھے اور ہم نے 5 کلومیٹر کا سفر بھی طے کر لیا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے سامان میں میرا قرآن پاک رکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا، ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا کیا رکھا ہے اور کیا کیا نہیں۔ امی نے کہا، ہم نے تمہارا قرآن پاک نہیں رکھا، ہمیں علم نہیں تھا کہ اس کو بھی ساتھ رکھنا ہے۔ میں پریشانی کے ساتھ قافلے کے ساتھ چلنے لگا تاکہ یہاں کے مردوں کو شک نہ ہو اور ابو بھی پریشان نہ ہو۔ میں نے چلتے چلتے دیکھا کہ ابو لوگوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہیں تو میں موقع پا کر قافلے سے بچھڑ گیا اور اپنے گھر کی طرف واپس سے دوڑ لگا دی تاکہ میں اپنا قرآن پاک واپس لا سکوں۔ میں وہاں سب کو بتائے بغیر اسی لیے بھاگا تھا کہ اگر میں امی کو بتاتا تو وہ ابو کو بتا دیتی اور یہ بات سب کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی اور مجھے کوئی گھر واپس آنے نہیں دے گا اور مجھے میرا قرآن پاک ہر قیمت پر چاہیے تھا کیونکہ ہندو قرآن پاک کی بے حرمتی کر سکتے تھے۔ اسی لیے میں جتنی جلدی بھاگ سکتا تھا بھاگا۔ میں جلدی جلدی بھاگ رہا تھا تاکہ جلدی سے قرآن پاک لے کر دوبارہ سے اپنے قافلے کے ساتھ ملوں۔ تیز بھاگنے کی وجہ سے میرے پیٹ میں اب شدید بل پڑ رہے تھے اور میں تمام دردوں کو فراموش کر کے دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ تقریباً 30 منٹ میں اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ سارا محلہ سنسان پڑا تھا۔ میں اپنے گھر میں داخل ہوا، الماری سے قرآن پاک نکالا۔ ابھی میں دروازے تک پہنچا تھا کہ میں لرز اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ 5-6 لوگ گھر کی دیواریں پھلانگ کر ہمارے گھر میں گھس رہے ہیں۔ میں باہر بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں تھا۔ میں فوراً سے کمرے میں بھاگا۔ کمرے کی دوسری طرف ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو دوسرے کمرے کو جاتا تھا۔ میں اس میں گیا، پھر میں نے سوچا کہ یہ تو کمرہ ہے، یہاں پر وہ تلاشی لے سکتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور گھر کے دوسرے صحن کی طرف چلا گیا جہاں کافی اندھیرا تھا اور وہ کمرے کی طرف ہی آ رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا گھر کے صحن میں لگے ہوئے برگد کے درخت کے موٹے سے تنے کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہو گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہاں پر اندھیرا ہے اور یہاں پر میں کسی انسان کو نظر نہیں آ سکتا۔ وہ کبھی باہر کبھی اندر کمروں میں جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک موٹے آدمی کی آواز آئی کہ یہ لوگ تو یہاں سے کب کے بھاگ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر مسلمان عورتوں کے بارے میں کچھ عجیب و غریب سی باتیں ہونے لگیں۔ خیر میرے ہاتھ میں قرآن پاک تھا، اسی لیے میں خاموشی سے کھڑا رہا۔ جب میں مطمئن ہوا کہ وہ دور جا چکے ہیں، گھر سے باہر نکل گئے ہیں، تو میں درخت کے پیچھے سے نکلا اور کمرے میں گیا۔ وہاں سے ایک کپڑا اٹھایا اور قرآن پاک کو لپیٹا اور اسے الماری میں رکھ دیا۔ پھر میں نے اپنی قمیض اتاری
मैंने नीचे से बनियान पहनी हुई थी। फिर मैंने कपड़े में लिपटे हुए कुरान पाक को उठाया और उसे जोर से अपने सीने के साथ बांध लिया और ऊपर से कमीज पहन ली, ताकि अगर कोई बलवाई मुझे देख भी ले तो उनको कुरान पाक नजर ना आए। फिर मैं कलमा तैयबा का विर्द करता हुआ एहतियात से कमरे से बाहर निकला और आहिस्ता आहिस्ता बाहर वाले दरवाजे तक पहुंचा, जो पहले से ही खुला हुआ था। मैंने दरवाजे से सर बाहर निकाला, बड़ी एहतियात से झांका तो मुझे गली में कोई भी आता जाता महसूस ना हुआ। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक रात के तकरीबन इस वक्त 12:30 बजने वाले होंगे। मैंने एहतियात से चलता हुआ गांव से बाहर निकल आया और तेजी से उस रास्ते पर दौड़ने लगा जिस रास्ते पर हमारा काफिला गया हुआ था। फिर अचानक से मेरे पीछे से एक मर्दाना आवाज आई, अरे वो देखो, ये तो कोई मुसलमान भागा जा रहा है। तो मैंने एकदम दौड़ लगा दी, लेकिन काफी दूर तक भागने के बाद भी वो मेरे नजदीक नहीं आ सके। उनकी आवाजों से लगता था कि वो मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। मैं बहुत थक गया था, शायद हमारे भागने की स्पीड एक जैसी थी कि तब मुझे आहिस्ता से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी कि हम इन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे, इन सबको मार डालेंगे। मैं बहुत ज्यादा खौफदा, उनकी बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया, मगर मैं फिर भी भागता रहा। फिर मेरे जहन में एक बात बिजली की तरह आई कि मैं तो ऐसे रास्ते पर भाग रहा हूँ जिस पर मेरा काफिला गया है, और अगर मैं मजीद इसी रास्ते पर भागता रहा तो ये मेरा पीछा करते हुए काफिले तक पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं खुद तो मर जाऊंगा पर इनको अपने काफिले तक नहीं पहुंचने दूंगा। यही सोचते हुए मैंने रास्ता तब्दील कर लिया। ये मेरा फैसला दुरुस्त साबित हुआ, लेकिन अचानक मुझे कांटा सा लगा, क्योंकि मैं जिस रास्ते पर भाग रहा था वहां कांटेदार पौधों का सिलसिला शुरू था। मैं बहुत परेशान हो गया था कि मुझे पीछे से आवाज आई, ओए देखो, वो तो भूत महल है, वो तो वहां दाखिल हो गया। ये अल्फाज जब मेरे कानों से टकराए तो मेरे कदम वहीं रुक गए। क्या मैं इस भूतिया महल में दाखिल हो गया? मैं अब वापस कैसे जाऊंगा? अलबत्ता इंतहाई खौफ की हालत में मैंने जुनूब की तरफ दौड़ लगाई। दौड़ते दौड़ते मैं एक जगह गिर गया, लेकिन गिरते वक्त भी मैंने कुरान पाक को जो मेरे सीने से लगा हुआ था उसे जमीन पर लगने से बचा लिया। मैं दौड़ते हुए खौफ से कांप रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि झाड़ियों में भागने से मेरे जिस्म पर हल्के हल्के से कट लग गए हैं और इनसे खून रिस रहा है। मुझे बहुत शदीद दर्द हो रही थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी और दौड़ता रहा। जब उठा तो सीधा हुआ मेरी जान ही निकल गई। मेरे सामने एक बड़ा दरख्त था और उस दरख्त से रोशनी फैल रही थी, और उस रोशनी में कोई बहुत ही हैबतनाक और इंतहाई खौफनाक मखलूक खड़ी थी। शायद वो कोई चुड़ैल थी, क्योंकि उसके लंबे लंबे बाल थे जैसे औरतों के होते हैं, और उनकी तादाद 4 थी। एक चुड़ैल के जिस्म पर बाल ही बाल थे, दूसरी की आंखें बहुत बड़ी थी, और तीसरी की नाक ही नहीं थी, और चौथी के होठों से खून टपक रहा था। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। और एक जिसकी आंखें बहुत बड़ी थी, उसका जिस्म बिल्कुल ढांचे की तरह था। मेरी आंखों को उनके जिस्मों से निकलने वाली रोशनी चुंधिया रही थी, बहुत खौफनाक थी। मैं ये सब देखकर अपनी आंखों पर हाथ रखकर चीखने लगा। खौफ से मेरी जान निकल रही थी कि अचानक मेरे जहन को इंतहाई खौफनाक झटका लगा और मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गया। मुझे कोई होश न रहा तो मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द रोशनी ही रोशनी है, आग ही आग जल रही थी। शायद कोई पुराना महल था। मैं वहां जमीन पर पड़ा हुआ था। मेरे इर्द गिर्द बहुत ही खौफनाक भूत खड़े थे और उनके कहकहों से मेरे कान फटे जा रहे थे। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी और सब कहकहे रुक गए। मैंने उसकी तरफ देखा तो खौफ से चीख उठा, क्योंकि मेरे सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल खड़ी थी। और फिर उसने अपना मुंह खोला और मुझे आवाज सुनाई दी, क्या तुम जानते हो कि हमारे इलाके में अगर कोई मुसलमान आ जाए तो हमसे जिंदा बचकर नहीं जाता? उसके खून से मैं और मेरी रियाया अपनी प्यास बुझाती है। मैं वहां कोई जवाब देने के बजाय रोए जा रहा था। उसने फिर कहा, क्या तुम कोई जादूगर हो जो हम जैसी ताकत भी तुम्हें छू नहीं सकती? लगता है तुम्हारे पास कोई इल्म जरूर है, और ये तुमने अपने सीने पर क्या बांधा हुआ है? मैंने कहा, मेरे पास कोई भी इल्म नहीं है, और सीने पर मैंने कुरान पाक बांधा हुआ है, और इस कुरान पाक में इतनी ताकत है कि तुम लोग इसे छूते ही मर जाओगे। मेरी बात सुनकर वो चुड़ैल अचंभे में पड़ गई। फिर एक एक करके
कईयों ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। वो जैसे ही मुझे पकड़ने के लिए मेरे जिस्म को हाथ लगाती तो ऐसा लगता कि जैसे उन्हें एक करंट लग गया है। उनकी सरदार चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उठकर खड़ी हुई और बोली कि इसे ज़ेर करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि अल्लाह ताला और कुरान पाक की मेहरबानी की वजह से इन चुड़ैलों का हर वार कता हुआ है। फिर वो ताबड़तोड़ मुझ पर वार करने लगी तो मैं इतना बदहवास हुआ कि आयतुल कुर्सी पढ़ना भूल गया, और शायद यही मेरी गलती थी। उन चुड़ैलों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे ऊपर उठाने लगी। मुझे तकरीबन 20 फीट जमीन से ऊपर ले जाकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उस वक्त चीख रहा था, मुझे अपनी मौत दिखाई दे रही थी, और फिर वो कुछ हुआ जिसका मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं जैसे ही जमीन पर पहुंचा, मुझे जैसे किसी के हाथों पर उठा लिया हो और आराम से मुझे जमीन पर खड़ा किया। जब मुझे कुछ ना हुआ तो वो सब चुड़ैलें हैरान और परेशान होकर मुझे देखने लगी, और मैं इस गैबी इमदाद पर हैरान था। अचानक एक चुड़ैल की आवाज आई कि सब मिलकर उस पर हमला करो और उसकी बोटी बोटी नोच डालो। अचानक कई सारी चुड़ैलें मेरे इर्द गिर्द आ गईं। मैं खौफ से चीख रहा था। चुड़ैलें मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ीं, और जब वो मेरे करीब पहुंची तो एक जोरदार नस्वानी आवाज गूंजी, ठहर जाओ और सब के सब पीछे हट जाओ। एकदम सब ठहर गई, उसकी आवाज की तरफ देखने लगी। मैंने देखा कि एक इंतहाई खौफनाक चुड़ैल एक तख्ते पर बैठी है और अपनी सरबराह चुड़ैल के सामने हाथ बांधे खड़ी है और कह रही है, मोहिनी जी, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बात बुरी लगेगी और आपको गुस्सा आएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप इस लड़के को खत्म नहीं कर सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? ये अकेला लड़का हम सब ताकतवर चुड़ैलों पर भारी है? वो चुड़ैल डांटते हुए बोली। नहीं मोहिनी जी, मैं इस लड़के को पहले ही से जानती हूँ और ये देख चुकी हूँ। पिछले दिनों जब मैं आपके कहने पर एक हिंदू लड़के को तंग करने पर मामूर हुई थी तो वो अपने इलाज के लिए एक मौलवी के पास गया था जो मदरसे में पढ़ाता था। वो मौलवी कुरान पाक पढ़ाता था। मोहिनी जी, ये कुरान पाक न जाने कितना ताकतवर है। इस कुरान पाक के पढ़ने से उस मौलवी ने ना जाने मुझ पर क्या पकड़ की थी कि मैं तड़पने लग गई थी, मेरी जान निकलती जा रही थी। मैंने उस वक्त उसको उस कुरान का वास्ता देकर ही उससे जान छुड़वाई थी, और मैंने इस लड़के को उसी मौलवी के पास बैठे देखा था। ये उसी मौलवी का शागिर्द है। ये हमारा निशाना क्यों नहीं बन रहा? मोहिनी ने कहा, क्योंकि ये ना सिर्फ अपनी मुकद्दस किताब पढ़ता है बल्कि इस वक्त उसने उसे अपने सीने के साथ लगाया हुआ है। मेरा मशवरा है कि आप अपनी और अपने साथियों की ताकत को इस पर जाया मत करें। ये सुनकर मोहिनी सोच में पड़ गई और बोली, कहती तो तुम भी ठीक हो। कल पूनम की रात है और ये अहम मसला है कि हम कल ये मसला अपने ग्रोह के सामने रखेंगे। ये सुनकर मैं कदरे मुतमईन हुआ कि चलो आज तो जान छूटी, कल जो होगा देखा जाएगा। मैं अब उस चुड़ैल को देख रहा था जिसके कहने पर सब मुझ पर वार करना बंद हो चुके थे और जिसको कुछ दिन पहले मौलवी साहब ने हिंदू लड़के से काबू किया था। मुझे उसकी रहमदिली साफ नजर आ रही थी और वो मेरी मदद करना चाहती थी। फिर इस चुड़ैल ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए एक तरफ को चली गई। मुझे वहां एक स्याह कमरे में बंद कर दिया गया जहां से मुझे बहुत ही खौफनाक आवाजें आ रही थी। मुझे बहुत प्यास लग रही थी, लेकिन वहां से पानी कहाँ से मिलता? मैं अभी इसी शशोपन में था कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की कमरे में दाखिल हुई और कमरा रोशनियों से भर गया। उसने कहा, तुमने पानी की ख्वाहिश की थी, ये लो पानी और साथ में खाना भी। मुझे बहुत ही भूख और प्यास लगी हुई थी। मैंने जैसे ही पानी को मुंह से लगाया तभी मेरे कानों में सरगोशी हुई कि पानी और खाने में जहर मिला हुआ है, तुम ऐसे मत खाना और पानी भी मत पीना। ये सुनते साथ ही मैंने पानी के गिलास नीचे रख दिया और लड़की से कहा कि तुम ये खाना और पानी ले जाओ। वो लड़की बड़ी हैरान हुई, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। उसने बहुत इसरार किया पर मैं मना कर चुका था। मैं बहुत हैरान था कि ये मेरे कान किसने सरगोशी की। फिर रात गुजर गई और दिन भी मेरा तकलीफ में ही गुजरा। प्यास और भूख से मेरा बुरा हाल था, लेकिन जब भी खाना या पानी जैसी चीजें आती तो मेरे कान में सरगोशी होती कि पानी और खाने में जहर है, इसे मत खाना वरना मर जाओगे। एक बार तो मुझे ख्याल आया कि ये सरगोशी जानबूझकर मेरे कान में की जाती है ताकि मैं खाना ना खाऊं और ऐसे ही भूखा प्यासा मर जाऊं। खैर रात का वक्त आ गया। मुझे अब कमरे से बाहर एक पिंजरे में कैद कर दिया गया
और 14वीं रात थी। चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। कुछ ही देर बाद मेरे सामने बहुत से भूत और चुड़ैलें आने लगे और बहुत ज्यादा धमा चौकड़ी करने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां से सब चली गई और मेरे वहां अकेला रह गया। तकरीबन 10 मिनट में ऐसे ही बैठा रहा, इधर उधर देखता रहा। उसे देखकर मैं वहां अकेला था। फिर मैं एकदम खौफजदा हो गया क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जमीन से धुआं निकलने लगा। फिर ये धुआं हर तरफ फैल गया। मेरा दम घुट, फिर एकदम हवा चलते चलते आंधी की शक्ल इख्तियार करने लगी। धुआं बहुत ही ऊंचाई तक चला गया और साथ तेज हवा भी चल रही थी और मेरा खांस खांस कर बुरा हाल था। अचानक मेरे पास एक नस्वानी आवाज आई, फैसल, घबराना नहीं, मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ। मैं तुम्हें आजाद करवाने आई हूँ। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हें यहाँ से बचा लूंगी। चलो मेरे साथ। मैं खौफ से बोला, कौन हो तुम और मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? उसकी दोबारा आवाज आई, वक्त जाया ना करो और चलो मेरे साथ। मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हारा हाथ थाम लूं और तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊं। शायद वो डरी हुई थी मुझे छोड़ने से उसका कोई नुकसान ना हो, इसीलिए उसने मुझे पहले मेरा हाथ थामने की इजाजत दी और हाथ आगे करते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा हाथ किसी अजीब सी चीज ने थाम लिया है। फिर अचानक मेरे सामने धुआं आने लगा और फिर एक खूबसूरत सी लड़की जाहिर हुई। तुम कौन हो? मैं वही लड़की हूँ जिसने तुम्हें तुम्हारे उस्ताद के साथ देखा था और तुम्हारे कान में भी सरगोशी की थी। मगर क्यों? मैंने कहा। उसने कहा, तुम्हारे उस्ताद ने मुझे जिंदा छोड़ दिया था और मैं इस एहसान का बदला चुकाना चाहती हूँ। दूसरा, मैं तुम्हारी इस मुकद्दस किताब से बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ। इस मुकद्दस किताब की वजह से तुम अभी तक जिंदा हो। ये किताब अगर तुम्हारे पास ना होती तो अभी तक तुम्हारा वजूद भी बाकी ना होता यहाँ। उसने कहा, अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने आंखें बंद की तो उसने कहा, बताओ तुमने अब कहाँ जाना है? तो मैंने कहा कि मैंने पाकिस्तान जाना है जहाँ मुहाजिरीन हूँ। वहां मैं अपनी फैमिली को खुद ही ढूंढ लूंगा। ठीक है, उसने कहा। फिर मेरे पांव जमीन से उठने लगे। मैं जमीन से ऊपर होता जा रहा था। मैं अभी खौफ से चीखने ही वाला था कि उसकी आवाज बिल्कुल चुप और खामोश हो गई। तुमको कुछ नहीं होगा। मैं खामोश हो गया। फिर चंद ही लम्हों बाद उसने कहा, अब तुम अपनी आंखें खोल कर देख सकते हो क्योंकि अब तुम पाकिस्तान में हो। मैंने आंखें खोली तो मैं वाकई महाजरीन के कैंप के नजदीक ही खड़ा था। मैं एकदम से बोला, अगर तुम वापस गई तो वो तुम्हें मार देंगे। उसने कहा, अब मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है। मैंने एहसान का बदला चुका दिया और अब तुम्हारी जान बचाकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर अचानक उसकी आवाज आई, हाय, मैं मारी गई। तो वो बिल्कुल मेरे पीछे ही आ रहे हैं। मैं भी ये सुनकर खौफजदा हो गया कि अब क्या होगा। वो कहने लगी, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो ये लोग रोज मुझे तड़पा तड़पा कर मारेंगे और मैं तड़प तड़प कर मरना नहीं चाहती। तुम एक काम करो, मेरे सर पर एक फूल लगा है, तुम ये उतार दो और इसकी पत्ती पत्ती कर दो। मैंने कहा, नहीं, हरगिज नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी जान बचा चुकी हूँ, अब तुम भी मेरी बचाओ। मुझे रोज तड़प कर नहीं मरना, जल्दी करो वरना वो लोग आ जाएंगे और मेरे साथ तुम लोगों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं करता। वो बोली, तुम अपने साथ बाकी लोगों का भी ख्याल करो और इस फूल की पत्तियों को तोड़ दो वरना वो लोग हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। मैंने आंसू से भरी आंखों से उसके बालों से फूल उतारा। जैसे ही फूल उतारा तो वो खूबसूरत लड़की बहुत ही भयानक चुड़ैल बन गई और जैसे जैसे मैं फूल की पत्ती तोड़ता गया तो वो भी जमीन पर गिरकर ढेर होती जा रही थी और कुछ देर के बाद वहां बहुत ही काला धुआं और सब कुछ गायब था। मैं खौफ से एक तरफ दौड़ पड़ा और महाजरीन के कैंप में दाखिल हो गया। मैंने जिन्नात के वादी से आज़ादी मिलने पर खुदा का शुक्र अदा किया। फिर मैं काफ़ी देर खैमों में घूमता रहा, वालिदैन को तलाश करता रहा। ये कोई रात का वक्त था। मुझे किसी खैमे से एक औरत के रोने की आवाज़ आई। मैं उठा और जब उसके पास गया तो लालटेन की रोशनी में देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही माँ थी। मैं जोर से अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा और मेरी माँ मुझे गले लगा कर रोने लगी। रोते रोते हमारी आवाज़ इतनी ऊंची हो गई कि काफिले के बाकी लोग भी जाग गए। जब उन्होंने मुझे देखा तो बहुत खुश हुए कि मैं जिंदा और सही सलामत वापस पहुंच गया हूँ। मैं उन बलवाइयों के हाथों नहीं आना चाहता था और ना ही मैं उनको जिन्नात की वादी के बारे में आगाह करना चाहता था। फिर मैंने हाथ धोए और कुरान पाक को अपने सीने से उतारा और अम्मी से कहा कि अम्मी, अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है।
मुझे ऐसे कुरान पाक ने ही बचाया है, आप इसे किसी ऊंची और महफूज जगह पर रख दें। अम्मी ने कुरान पाक हाथों में लिया और चूम लिया। सारी रात हमारी बातें करते गुजर गई। सुबह मैंने सैर होकर पानी पिया और खाना खाया, फिर पुरसुकून होकर अपने खैमे से निकलकर बाकी महाजरीन को देखा, जिनमें से बहुत सारे लोग अपने लोगों को खो देने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान और अफसरदा थे। फिर मैं सबका दिल बहलाने लगा और सबके दौड़ दौड़ कर काम करने लगा। बेशक मेरे अल्लाह ने मुझे इसीलिए जिंदगी दी थी कि मैं दूसरों की मदद करूं। मैं जिंदगी भर उस जननी का एहसान नहीं भूलूंगा जिसने महज एहसान का बदला चुकाने के लिए मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। वरना अगर वो मुझे अपनी वादी के लोगों से ना बचाती तो मैं शायद उनकी वादी में सजाए मौत का मुस्तहक ठहरता और शायद आज जिंदा ना होता।